So hello everyone, welcome to today's video. My name is Neharika Jayani, and in this video I'm going to cover what is NMTC, what is this course all about, and how you can use my recorded course for your preparation for various maths Olympiads as well, not only for NMTC. So this course is corely for NMTC grade 5 and 6, that is primary category, but this course can be used to improve your foundation as well as how you can use your fundamental concepts in advanced level of questions. Also you'll get to learn that how a basic concept can be used in a very higher level of questions beautifully, right? So it's a different kind of maths than the regular curriculum you are following. The syllabus is same. Some type of questions you might see that the question set is also same, because we have to cover the foundation level also. But later on in videos you'll see that the same concept is used beautifully in advanced level of questions. So how we can use that, and how this course will be helpful for various other maths Olympiad. So I'm going to talk about all about NMTC in this video and how we are going to pursue this course for your preparation for various mathematics Olympiad, and to expertise your advanced level. So let's begin. So NMTC is basically this year 2024 and 2025. It is the 56th National Mathematics Talent Contest. Okay, so this is the 56th time they are going to conduct this exam, and AMTI, I should write AMTI, which is Association of Mathematics Teachers of India. It's a kind of NGO in Chennai. They conduct this exam, and the purpose of this exam is to basically motivate the kids who are very good in maths, and the people who are interested in research work, maybe later at the point of graduation or post graduation. So this is just to motivate the junior kids in this category, in this subject, right? So another thing is the categories, which is very important. This exam is conducted in actually 5 different levels, but at school level at 4 different levels. And what are they? So for grade 5 and 6, the paper is same, right? We call it as primary. So the category name is primary. So this recorded course I'm talking about, you'll get the link right in the description also. And this is, if you are watching it on my website, then this is the course I'm talking about, right? So primary course is grade 5 and grade 6, for grade 5 and grade 6. So there are two different type of levels you are going to have in this exam, stage 1 and stage 2, right? So this stage 1 and stage 2 paper for both the grades is same. So for grade 5 student, the same paper will be conducted, and for grade 6 student, the same paper will be conducted. Now you will be amazed, like how ma'am, a grade 5 and 6 student can give the same paper and there is a chance of getting selected for grade 5 student in such a higher level of examination. So this you will get to know when you'll get to know about this answer when you will solve the questions in this course. So you'll get to know that the basic concept is the concept used is very basic, but the questions which we are going to cover in this particular course is at very advanced level, and they are using the concept beautifully. Nothing new concept, nothing higher level of concept is needed to solve such questions. What is needed is the concentration, focus, and a little bit of practice, and majorly the IQ, right? How you are going to pursue a problem. So see, in life, when I get a problem, I'm of a certain age, right? And if my parents get a problem, right, in life, so we have to tackle that problem in the same manner, right? At that point of time, it doesn't matter that I am younger than my parents are older. So obviously they will have a little more experience. Why? Because they have practiced a lot to solve problems. I have a less practice, but still I have to face the same problem, right? In the same way, it doesn't matter that 1 year gap, can create a major change in the results. No. If you have a very good problem solving skill set, then it doesn't matter that you are in grade 5 or grade 6. If you have those basics, foundational concepts very strong, then you can
be able to solve those problems. So this is called as problem solving skill set, which we are going to learn in this course through questions. Also, I will be covering certain theory topics as well. So I will be letting you know that how you have to cover this course, from where you have to learn the theory part. There will be assignments, tests, and we will be going to talk about that later. So the first category is primary. In this, grade 5 and grade 6 students are going to have the same paper. For grade 7 and 8, it's same sub junior category, and for grade 9 and 10 it's called junior category, and for grade 11th and 12th it is called inter category. Okay, so I will be bilingual now because maybe there are certain kids who are not comfortable in English. तो grade 5 और grade 6 का primary का category रहता है, 5th और 6th class का same paper आता है, 7th and 8th class का same paper आता है जिसको हम sub junior बोलते हैं, 9th 10th का junior, and 11th 12th का we call it as inter, right? There is one more which is senior for the graduates जो college में होते हैं, but that is not required because it's a college thing. तो ये हमारा रहेगा. Now, what about the primary syllabus? Because this course I am talking about for grade 5, so I am focusing on this grade 5 and grade 6 in this particular course कि क्या रहेगा. तो primary का syllabus क्या है? If you see that कि जो आपका basic grade 5, grade 6 का syllabus होता है वही है, ठीक है. बहुत ज्यादा कोई नए टॉपिक्स इसमें नहीं है, बट इनका जो यूज है वो आपकी हो सकता है करिकुलम बुक्स में आपको ना मिले. सो यू विल सी दैट द अरिथमेटिक पार्ट, इसमें आपका फ्रैक्शंस आएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कैलेंडर. ठीक है, तो ये चीज आपकी आती है अरिथमेटिक में. नाउ व्हाट इज अरिथमेटिक? अरिथमेटिक क्या होता है? तो देयर आर 4 कैटेगरीज यू कैन सी: अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. द बेसिक डिफरेंस क्या है? सो सी, अरिथमेटिक में मेजरली हम नंबर्स पे काम करते हैं. यू कैन कॉल इट एज नंबर सिस्टम. ठीक है, तो नंबर्स का कैसे ब्यूटीफुली यूज किया जा सकता है, नंबर्स के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, नंबर्स को कैसे घुमा फिरा के हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट में अपनी डेवलप कर सकते हैं. तो उसके अंदर क्या होता है, दिस इज मेजरली द कैलकुलेशन पार्ट. जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग तो उसकी कॉन्सेप्चुअल मेथड से होती है कि अच्छा इस टाइप की जब प्रॉब्लम होती है हमें ऐसे सॉल्व करना होता है. बट व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग इट तो कुछ कैलकुलेशन मतलब उसके अंदर आ जाती है. वो कैलकुलेशन सॉल्व करना हमें आना चाहिए. वो कैलकुलेशन इंप्रूव करने में हमें अरिथमेटिक हेल्प करता है. तो एज यू कैन सी द टॉपिक्स, जैसे आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आने चाहिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए, उस पे बेस्ड एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, कैलेंडर, ये सारी वो चीजें जो आपको कैलकुलेशन के अंदर बढ़िया बनाती है. तो ये जो टॉपिक्स हैं ये मेजरली अगर आपके पास आएंगे तो दे आर गोइंग टू चेक योर कैलकुलेशन थिंग ओनली, कि आप कैसे हो कैलकुलेशन में. तो इसमें हमको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, बट पैटर्न्स हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. अगर आप वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये पोर्शन काफी अच्छे से कवर हो सकता है. इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है उसका ये पोर्शन बहुत अच्छा होता है, जो कम प्रैक्टिस करता है उसका कम अच्छा होता है. इट इज, यू कैन से दैट, नथिंग टू डू विद मेजर कॉन्सेप्ट्स. इसके अंदर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहते हैं. और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, प्रैक्टिस कम है, तब भी आपका अच्छा नहीं होगा पोर्शन. ठीक है, तो आपको इसमें जो मस्ट चीज है, आई विल से द मस्ट चीज इज प्रैक्टिस. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ठीक है, वो मैं आपको करवाऊंगी, क्वेश्चंस भी कराऊंगी, असाइनमेंट्स भी दूंगी, टेस्ट भी होंगे इस कोर्स के अंदर. सो इट इज समथिंग लाइक, मैं एक छोटा सा ब्रीफ आपको थियोरी लेक्चर दूंगी, फिर मैं आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे हुआ. उसके बाद मैं आपको एक क्विज दे दूंगी जो आपको ऑनलाइन ही देना पड़ेगा. यू विल गेट द इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ दैट, एंड आपको सोल्यूशंस भी क्वेश्चंस के मिल जाएंगे. देन यू विल डू सर्टेन मोर क्वेश्चंस. फिर आपको बीच में असाइनमेंट सबमिशन भी हो सकता है कि आ जाएगा कि ये क्वेश्चन आप असाइनमेंट सबमिट करो. तो मुझे असाइनमेंट्स रिसीव होते हैं कि अच्छा ये बच्चे ने ये क्वेश्चंस किए, तो आई चेक इट एज वेल, और मैं उसको रिवर्ट बैक मेल पे करती हूँ कि उसका कैसा रहा टू द पेरेंट्स, की इसने कैसा असाइनमेंट किया है. ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस दैट वी आर गोइंग टू डू इन टर्म्स ऑफ वीडियोज एंड वर्कशीट्स बोथ. मेंसुरेशन, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है जो मैं पढ़ाऊंगी. कि ट्राइंगल्स के इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे. ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. इफ यू आर गुड एट विजुअलाइजेशन तो आप लोग बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अच्छा क्वाड्रिलेटर में ये एंगल लग रहा है, ट्राइंगल लग रहा है, सर्कल लग रहा है. सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ऑल अबाउट द थियोरम्स, इट्स ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन. तो इसके अंदर कोई किसी बच्चे को आप रटवा नहीं सकते कोई चीज कि एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर लो, रेशियो प्रोपोर्शन में दिया होता है तो एक्स लेके कर लो. तो इसमें क्या एक सर्टेन मेथड है जो बच्चा याद करके प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकता है.
इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, पर मोर इंपॉर्टेंटली इज विजुअलाइजेशन, दिखना बहुत जरूरी है इसमें। एंड नोबडी कैन इनकलकेट इन दैट यू कि ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं आसमान में देखो तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है रात में, तो तुम बोलोगे तारे दिख रहे हैं, चांद दिख रहा है, कोई एरोप्लेन जा रहा है, एरोप्लेन दिख रहा है, हो सकता है किसी को अंधेरे में पक्षी भी दिख जाए, पेड़ भी दिख जाए, उसको बहुत कुछ, मतलब ऊपर आसमान में देखते वक्त उसको बहुत कुछ दिख सकता है। वो तो तुम पे है कि तुम क्या क्या देख पा रहे हो, राइट। एक बच्चा है जिसको सिर्फ चांद दिख रहा है, तारे नहीं दिख रहे हैं, दूसरा है जिसको तारे भी दिख रहे हैं, जिसको एक एरोप्लेन की लाइट्स भी दिख गई मूव होते हुए कि ये मूव कर रहा है, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर विजुअलाइजेशन, और ये इंप्रूव हो सकता है विद प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस जितने आप करोगे, उसको जितना ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, उससे इंप्रूव होगा। तो हम क्वेश्चंस तो इसमें सब नहीं करने हैं, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस, राइट। अलजेब्रा इज लिटिल अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। नाउ व्हाट इज अलजेब्रा? इसमें तो क्या सब कुछ नंबर में दिया होता है। अलजेब्रा में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें आपको पता ही नहीं है, वी हैव टू लेट, कि मैंने तुमको बोला मेरे पास ये जो पेन है इसका वेट मुझे नहीं पता, पर मान लो कि अगर ऐसे पेन जो है, लेट्स से कि आपने बोला कि मुझे पता नहीं है, तो आई कैन लेट इट एज एक्स, इसका वेट क्या है, एक्स है। आपने एक अल्फाबेट को इसके वेट से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, कि इसका वेट जो है ए है या एक्स है। अब अगर मैं बोलूं ऐसे मेरे पास जो है 2 पेन है, ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि अगर एक का ए है तो इसका 2a है, तो मतलब एटलीस्ट आपको कुछ तो पता चल रहा है, राइट, अलजेब्रा के अंदर, कि ठीक है मुझे इसका वेट भी नहीं पता है, मुझे इसका वेट भी नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि अगर इसका a है तो इसका 2a है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाती है कि हाँ इससे तो ज्यादा होगा, इससे कम होगा, लाइक दैट वी आर एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम बाय लेटिंग इट एज एक्स एंड वाई, फिर एक्सप्रेशंस बना के हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। तो दिस कम्स इन अलजेब्रा। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स प्लस आपको जो अल्फाबेट्स हैं जैसे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स जिनको हम बोलते हैं, इनका मिक्स यूज करना है, प्लस उस पे ऑपरेशन लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, एंड देन एक्सप्रेशंस बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, फिर उनको सॉल्व करना है। तो ये सब चीजें हम किस में करते हैं, अलजेब्रा में करते हैं। ये आपका सिलेबस है। देन ज्योमेट्री, इसके अंदर जो ये मेंसुरेशन है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, इसके अंदर विजुअलाइजेशन तो है ही, थ्योरम्स वगैरह तो है ही, प्लस पर इसमें जो मेजर क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एरिया रिलेटेड, ठीक है, कि इसका एरिया निकालो। तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द एरिया व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि ये गार्डन है इसका एरिया बताओ, ये सेंट्रल पार्क है इसका एरिया बताओ, व्हाटएवर। तो दिस कवर्स मेजरली द एरिया पोर्शन, और ये जो है मेजरली थ्योरम्स एंड एवरीथिंग दैट कवर्स। तो इसमें आता है आपका स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स। तो इसकी हम थ्योरम प्रॉपर्टीज, तो इसमें मेजरली ग्रेड 9 की चीजें भी कुछ हमें कुछ क्या काफी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। तो हमें, अगर आप 5th-6th ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स ओलंपियाड के लिए बच्चों, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 5 बेसिक, 6 बेसिक एंड 7th और 8th तक का हमको एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल जो होता है वो हमें इन टॉपिक्स का सारा नहीं करना है। मैं ऐसे बोल देती हूँ बच्चों को 9th का भी करना है, 10th का, तो डर जाते हैं, और 9th 10th का भी अभी पढ़ना है। नहीं, यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग। अब जैसे 10th के अंदर तो यू आर हैविंग मल्टीपल फिगर्स, ठीक है, उसमें 3D भी आ जाती हैं, ठीक है, इधर तो सिर्फ 2D है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, ये सारी 2D है। 3D के अंदर सिलेंडर आ जाता है, स्फीयर आ जाता है, कोन आ जाता है, ये सब चीजें तो है ही नहीं, तो हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, पर 9th क्लास में अगर कोई 2D फिगर, वो भी ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल पे कोई एरिया का क्वेश्चन है तो वो हम करेंगे, क्योंकि वो हमें एडवांस लेवल की, इन्हीं टॉपिक्स में एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करवाएगा। तो ये चीज बोल रही हूँ। तो हमें कुछ चीजें 7 से भी पढ़नी है, कुछ 8 से भी पढ़नी है, कुछ 9 से भी पढ़नी है। 10 तक जाने की जरूरत नहीं है, 9th तक हमें कुछ टॉपिक्स को लेके जाना पड़ेगा। जैसे इसमें बहुत ज्यादा लेके नहीं जाना है, ठीक है। मेंसुरेशन में यस वी हैव टू कवर टिल 9th, ज्योमेट्री में वी हैव टू कवर, अलजेब्रा के अंदर भी 8th तक का मान लो थोड़ा हमें जाना पड़ेगा, 9th तक जाने की कोई खास जरूरत नहीं है सिवाय 1-2 सब टॉपिक के, ठीक है। सो दैट आई विल कवर। अब ये जो सिलेबस है मोर और लेस आपके अदर मैथ्स ओलंपियाड्स का भी है। तो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनएमटीसी या आपका स्कूल एनएमटीसी कंडक्ट नहीं करवाता है तो यू डोंट हैव टू वरी, दिस विल हेल्प यू इन योर एसओएफ आईएमओ एग्जाम्स, या आप कोई भी सेस्मो दे रहे हैं, एएमसी का एग्जाम दे रहे हैं, अमेरिकन मैथ्स कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, एनीथिंग, राइट, एनी काइंड ऑफ मैथ्स ओलंपियाड, मोर और लेस दिस इज द बेस सिलेबस विच विल हेल्प यू आउट इन ऑल द ओलंपियाड, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेज 1 सिलेक्शन कैसे होता है, एनएमटीसी का बता रही हूँ। एनएमटीसी के अंदर क्या होता है बच्चों की, स्कूल में कंडक्ट होता है एंड 10% ऑफ द टॉप 10% स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जैसे 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 10 बच्चे जो हैं स्टेज 1 में सिलेक्ट हो जाएंगे जो नेशनल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है आपकी वो आपके स्कूल लेवल पे ही होती है, उसमें सिर्फ आपका कंपटीशन आपके स्कूल मेट्स के साथ होता है। तो स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनके 10% बच्चे जो हैं स्टेज 1 में सिलेक्ट हो जाएंगे और वो अपने स्कूल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर 20% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं मॉडरेट लेवल के होते हैं और 80% हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है। तो दिस पेपर इज नॉट इजी, यस दिस इज डिफिकल्ट एज पर ग्रेड 5 एंड 6, इसीलिए पूरे ऑल इंडिया से सिर्फ 20 बच्चे नेशनल में सिलेक्ट होते हैं ग्रेड 5 एंड 6 में मिलाकर। पूरे इंडिया में ग्रेड 5 6 के सारे बच्चे मिला लो, सिर्फ 20 बच्चे नेशनल में जो है सिलेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली जो लेवल है वो हाई है, बट व्हाई वी शुड प्रिपेयर फॉर दिस, राइट? क्योंकि 20 ही सिलेक्ट हो रहा है। द रीजन इज if you will prepare for this will help you to improve your problem solving skill set, which will help you later in your grade 7th 8th 9th 10th 11th 12th plus as well as in your life। ठीक है, it's like अगर एक problem solving habit बन जाती है तो you'll see that majorly जो maths के लोग होते हैं वो हर एक problem solving में अच्छे होते हैं, not only in mathematics, they are also good in problem solving the real life प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अच्छे होते हैं। द रीजन इज क्योंकि उनका स्किल सेट बन जाता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करते हैं। दे आर गुड डिसीजन मेकर्स, ठीक है, वो डिसीजन अच्छा, दे आर गुड एट रिस्क टेकिंग, दे आर गुड एट कैलकुलेटिव रिस्क टेकिंग, राइट? सो वो चीज उनको हेल्प करती है। सो दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट इज मस्ट फॉर एवरीवन। वी आर सो माय टारगेट इज ऑफ कोर्स कि 20 बच्चा जो नेशनल में से सिलेक्ट हो रहा है वो मेरा ये कोर्स देख के उसको फायदा हो, राइट, और वो सिलेक्ट हो। बट मेरा इसके साथ मेजर एम जो इस कोर्स का है वो ये है कि आपको पढ़ना आए कि कैसे पढ़ना है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट आए कि कोई क्वेश्चन या कोई जिंदगी में भी प्रॉब्लम या कोई मैथ्स प्रॉब्लम या कोई साइंस प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है तो उसको हमें कैसे फेस करना होता है, हमें सोचना कैसे होता है। हाउ टू वी, मेनी स्टूडेंट सेज दैट मैम क्वेश्चन आया स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, राइट? सो एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर कि स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट, राइट? हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, वेदर वी आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन और नॉट, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। First thing is that how to start that, right? So we are going to talk about that in every single question. तो वो question करते रहोगे तो you'll get to know कि अच्छा मैम ने ऐसे सोचा है, इसको ऐसे सोचना है, ऐसा question होता है तो ऐसे करते हैं। तो you'll get a process, you'll get a path that will help you, right? So yeah, this is all about the stage 1. स्टेज 2 के अंदर एज आई टोल्ड यू कि जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे के सारे नेशनल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन स्टेज 1, स्टेज 1 इज अ 2 hour पेपर, ठीक है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव टाइप, यस ये रहा, ठीक है। सो इट्स अ 2 hour पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। स्टेज 2 पेपर जो है वो 3 hour पेपर है एंड इट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो यू विल सी दैट यू विल गेट 7 to 8 questions only in 3 hours you have to solve it. So obviously the difficulty level is very high कि 3 घंटे में आपको सिर्फ 8-9 questions solve करना है। So you are having a lot of time to solve those questions. The point is you have to solve those, right? And इसमें step marking भी होती है. It is not necessary that you have to get the answer only. If your process is same, correct, if your process method, whatever you are using, your thinking थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड, उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। बिकॉज इफ यू आर राइटिंग समथिंग तो एग्जामिनर को पता चल जाता है अच्छा इसने ऐसे सोचा है, ठीक है, ये आंसर पे नहीं पहुंच पाया बट हाँ इसने ऐसे सोचा है, मतलब इसको ये पता है कि इसको कैसे स्टार्ट करना है, ये सोच पा रहा है, तो उसके मार्क्स भी होता है। दैट्स व्हाई दिस एग्जाम इज वेरी गुड, ठीक है। सो द सेकेंड लेवल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ओनली एट द सेंटर्स जो एनएमटीसी ऑथराइज करती है। एंड ये जो है मेजरली इसका जो सिलेबस है स्टेज 2 का प्री आरएमओ, आरएमओ, इनमो और आईएमओ का जो एक्चुअल आईएमओ जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उससे काफी मैच करता है और उसी से इंस्पायर्ड है, तो उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एनएमटीसी की एग्जाम डेट्स क्या होती हैं? एनएमटीसी मेजरली जो टेंटेटिव शेड्यूल है, जैसे अभी इस साल हुआ था, स्टेज 1 फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होता है, स्टेज 2 फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है। तो यू हार्डली गेट 1 month गैप फॉर स्टेज 2। सो आपको स्टेज 1 की कभी प्रिपरेशन नहीं करनी होती, यू ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर फॉर स्टेज 2, क्योंकि स्टेज 1 की प्रिपरेशन करके हम स्कूल में सिलेक्ट हो गए एंड फिर 1 महीने में आप नेशनल कवर नहीं कर सकते। सो यू हैव टू prepare every single topic, every single question as per national level exam.
उसके लिए राइटिंग स्किल्स, टाइप, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. So about this course I'm going to talk about, right? Majorly मैं आपको जितना भी पोर्शन है अक्टूबर से पहले इसके अंदर दे दूंगी. यू मस्ट हैव सीन दैट कि मैंने अभी काफी वीडियोस मेरे रिकॉर्डेड कोर्स में डाल दी हैं और मैं वीकली उसके अंदर इनपुट्स देती हूँ और उसमें इंप्रूवमेंट भी मैं करती हूँ. बीच में क्विजेस ऐड कर देती हूँ, तो क्विज आते रहते हैं, असाइनमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है. आपको क्वेश्चन सेट मिलता रहेगा, बीच में कोई थ्योरी वीडियोज आ जाएंगी, कुछ क्वेश्चन सेट वीडियोज ऑलरेडी है. So basically this course is like not कि सारा का सारा भी आपको पूरा रेडी मिलेगा. No, not like that. Even एक रेडी कोर्स भी है पिछले साल का, बट वो सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, राइट. सो इस साल वी आर यूजिंग ऑल दोस क्वेश्चन सेट्स इन दिस. इस कोर्स में आपको पिछले साल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर हम लोग थ्योरी ऐड कर रहे हैं, क्विज ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग असाइनमेंट्स, अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स वी आर एडिंग इन दिस. सो ये अपडेटेड वर्जन है. सेम नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो ये कोर्स भी अवेलेबल रहेगा, ये पूरा हो जाएगा, रिकॉर्डेड में रहेगा, बट हम लोग इसी को नेक्स्ट ईयर भी यूज करेंगे और उसमें भी अपडेशंस देंगे. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. ऐसे नहीं कि मैंने एक बार रिकॉर्ड कर दिया और मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए एंड आई एम रिपीटिंग द सेम कोर्स एवरी ईयर. नो, आई एम एडिंग एज पर द चेंजेस इन द एग्जाम. इस साल जो एग्जाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से ज्यादा आए, कौन से कम आए, बेस्ड ऑन दैट आई चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि इसमें इतनी जरूरत है, इससे ज्यादा की नहीं है. एंड ऑल्सो विद द नीड ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती हूँ. जो बच्चे मेरे साथ रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़ते हैं उनसे मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहती हूँ. तो अगर मुझे कोई बच्चा बोलता है कि मैम मुझे ये वाला सर्टेन टॉपिक में थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है, दे ड्रॉप मी अ मैसेज और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं उनको एक्स्ट्रा क्विज, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट्स या कोई एक्स्ट्रा वीडियोस बना के उसमें ऐड ऑन कर देती हूँ. सो दिस इज कंप्लीटली, ऐसा नहीं है कि वन टाइम आई मेड इट एंड आई सोल्ड इट कि देखते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है. नो, if you buy this particular course, so I am if you are enrolled in this course, I will be in direct touch with you on WhatsApp, but you guys have to message me. I might be a little late to reply you, but हाँ मैं reply करूंगी and based on that your requirements every Saturday Sunday मैं बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियोस, असाइनमेंट्स, क्विजेस में चेंजेस करती हूँ. कोई टॉपिक की ज्यादा, कोई की कम, बेस्ड ऑन दैट. ठीक है कि ये समझ आ गया मैम इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आई स्टॉप एडिंग वीडियोस इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन. और बच्चा बोलता है नहीं मुझे अभी भी नहीं आया, और वीडियो इसमें और डालो, अच्छे से नहीं आया, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं और एड ऑन कर देती हूँ. So every week we update the courses. Yeah, moving on. So this is the tentative basically schedule. And now the preparation to prepare for this exam or for Maths Olympiad, to get to know about the recording things and everything. So you can join my recorded practice course. हो सकता है आप लोग इसी कोर्स में इनरोल होके ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो. तो यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में इस रिकॉर्डेड कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वो बाय कर सकते हैं. जो इस कोर्स में देख रहे हैं तो दे हैव टू साइन अप with me and you have to come in direct touch. मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर ही लूंगी, जिस भी नंबर से करूंगी. इनरोल्ड स्टूडेंट का मैं पर्सनल टच में रहती हूँ, तो मैं पर्सनली मैसेज करके उनके साथ लाइन अप रहती हूँ. बाकी जो बच्चे हैं जो इनरोल नहीं किए हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो वो लोग मेरा ये निहारिका जयानी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं. मुझे इंस्टाग्राम jayani.niharika पे मैसेज, अगर आपको मुझसे बात करनी है इंस्टाग्राम पे मैसेज करो. आई एम सुपर एक्टिव ऑन दिस, मैं रिप्लाई करती हूँ. और अगर आप प्रोफेशनल हैं और मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं इन एनी काइंड ऑफ रिकॉर्डेड कोर्सेज और इन एनीथिंग, तो आप मुझे लिंक्डइन पे निहारिका जयानी डालेंगे, देयर इज अ प्रोफाइल, आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज ड्रॉप कीजिए इफ यू वांट टू टॉक अबाउट बिजनेस बेस्ड ऑन दिस and business or any kind of social work. I'm very interested in special, you can say, social work for the country. जैसे गवर्नमेंट स्कूल से हैं अगर आप, ठीक है, और आप अपने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अपने बच्चों को कुछ अच्छा नॉलेज देना चाहते हैं बेस्ड ऑन ओलंपियाड, और या मैं किसी भी तरीके से आप लोगों की मदद कर सकूं जिससे हम इंडिया के जो अलग अलग एरियाज के बच्चे हैं जिनको इतनी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उनको अगर मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं. मैं काफी लोगों के साथ कोलैबोरेटेड हूँ, बिहार में, झारखंड में, ईस्ट के कुछ स्कूल्स के साथ, जिनको मैं
देखिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं है, बट जितना भी है, जितना मैं कर सकती हूँ, मैं अपने छुट्टियों में, संडेज को, वीकडेज पे जब बच्चा स्कूल आता है, या कोई एक्स्ट्रा टाइम पे जब भी स्कूल उनको बुला सकता है, मैं मेरे यहाँ से लाइव सेशंस भी देती हूँ, उनको गाइडेंस देती हूँ, मेंटोर करती हूँ। एंड इवन मैं कुछ स्कूल्स को मटेरियल में भी हेल्प करती हूँ, जिनके पास इतना प्रॉपर मटेरियल नहीं है, मैं उनसे बात करती हूँ, देखती हूँ उनके सर्कमस्टेंसेस, मुझे लगता है नहीं ये लोग इतने वेल इक्विप्ड नहीं है कि ये लोग मटेरियल बना सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं, पर जरूरत है, तो वो सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उन लोगों को देती हूँ। तो वो डिपेंड करता है, एज पर हम लोग थोड़ा तो चेक करते हैं कि इनको एक्चुअली जरूरत है या ये ऐसे ही है, राइट, मतलब दे आर टेकिंग एडवांटेज। अगर लिटरली हमें लगता है कि ये स्कूल नीडेड है, आप कोई भी ऐसे एरिया से हैं, अगर आपको मटेरियल बनाने में प्रॉब्लम होती है, आपको अपने बच्चों को देना है, आपको किसी भी तरीके की मटेरियल मेकिंग में, लाइव सेशंस में, गाइडेंस में, काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, आपके यहाँ पे बहुत अच्छा बच्चा है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल से हैं, छोटे स्कूल से है, कोई गवर्नमेंट स्कूल से है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ हेल्प यू वांट, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। सो यस, तो आप मुझे लिंक्डइन पे कोलैबोरेट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेरे साथ क्लब करना चाहते हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, प्लीज अपने आइडियाज मुझे लिंक्डइन पे शेयर कीजिए। आई आई रियली यू नो लाइक एजुकेटर्स एंड गुड पीपल अराउंड मी, लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्ट होने में मुझे बहुत मजा आता है, टाइम स्पेंड करने में कुछ सीखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए लिंक्डइन पे, निहारिका जानी सर्च कर देना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आईडी, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक, तो आप वहां पे करिए। बाकी जितने भी बच्चे हैं, एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग, पेरेंट्स हेल्प, ठीक है, तो आपको चाहिए, यू कैन दिस, आप कहीं पे भी मुझे देख रहे हैं, आप मेरा कोर्स बाय करें या ना करें, आप मेरी वेबसाइट है niharikajani.com, इस पे साइन अप कर लीजिए। मैं बहुत सारा फ्री कंटेंट शेयर करती हूँ, बिलीव यू मी, आई रियली ट्राई टू गिव इट बैक नाउ, बिकॉज मैंने काफी लिया है कंट्री से, बच्चों से, पेरेंट्स से, एजुकेशन सिस्टम से, और ऐसा नहीं कोई सेटिस्फेक्शन का एंड तो होता नहीं है, बट आई ट्राई टू गिव बैक ऑल्सो। सो आप लोग इस पे साइन अप कीजिएगा, आपको काफी अच्छा कंटेंट फ्री में भी मिलेगा, तो यू कैन साइन अप देयर। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन दिस कोर्स, प्लीज आप मेरे टच में रहिए, मैं आपको एक पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप करूंगी, आप लोगों को बेटा मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहना है, मैं रिकॉर्डेड में दिखूंगी 90%, 10% आप लोगों से कॉन्टैक्ट में बात करूंगी, आप लोगों से फीडबैक लूंगी, मैं आपकी रिपोर्ट चेक करूंगी कि आपने कितना वीडियो देख लिया है, मेरे पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड आता है कि इस बच्चे ने इतनी वीडियोस देख लिया है, ये असाइनमेंट कर लिया है, ये क्विज किया, इसमें इतने नंबर आए, वो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट मैं आपके पेरेंट्स को भेजूंगी, ठीक है। सो ट्वाइस इन अ मंथ आई ट्राई कि मैं भेज दूं, वंस इन अ मंथ तो पक्का आएगी कि आपके बच्चे ने इतनी वीडियोस देखी हैं, ये क्विज किया, अभी किया नहीं है, एंड मैं बीच में बच्चे से बात करने की भी कोशिश करती हूँ कि आपको क्या चीज में डिफिकल्टी आ रही है, क्या नहीं आ रही, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे को काफी सारी चीजें नहीं भी आती हैं, तो मैं क्रॉस फीडबैक भी लेती हूँ, एंड आई गेट टू ट्राई टू यू नो हेल्प दैट चाइल्ड इन सर्टेन वेज, और आई इंप्रूव माई कोर्स अकॉर्डिंगली। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बहुत बोर कर दिया मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही, तो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू दिस कोर्स, वीडियोस देखिए, ठीक है, क्विज आए क्विज करिए, असाइनमेंट आए असाइनमेंट कीजिए, और मेरे साथ व्हाट्सएप पे पर्सनली लिंक दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आंसर की में कोई दिक्कत है, कुछ सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ गया, आपको कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है किसी टॉपिक में, किसी टॉपिक की थियरी समझ में नहीं आई, थियरी का आपको वीडियो चाहिए उसका, तो आप मुझे मैसेज करते रहिए, मैं उसके अंदर एड ऑन करती रहूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।